say anything. Recording is on. काही नाही बोलली. They'll speak in like 5 minutes. They usually start late. Just give them like 3-4 minutes. By 11:10 they'll start. Hello, everyone. Hello. Am I audible to all of you? Good morning, Sally. Yeah, you're audible. Yeah. Actually, I was waiting for Amritji, but he's not available for some reason. He's visiting some factory due to some check-ins and everything. So I'll be leading this call today. This is Saili. I'm a senior associate in the technical team of the Eternia retail team. And along with me, Pradeep is here, Pallavi is there, and Nihal is there. So we have a team of 4, plus Amritji is guiding our team. Okay. So 5 people, we are here to help you regarding the production document releases. For like, if you are taking it from Eternia factory also or any other fabricator, we will be here to support you. So basically, to start with, this call is regarding the SOPs. Okay. So give me a moment. Just I'm sharing my screen with all of you. Meanwhile, can you put on your name and dealership name in the chat box so that I can confirm who joined and who's not joining? Because I can see not everyone is in the, present in this call, whoever invited. Hello? Hello? Yes?
Is everyone comfortable with Hindi and English? You can unmute yourself. This should be an active communication over here. हाँ भगवान फ्री में दे रहा है भाई, सभी बांटते भगवान, Yeah, I guess we are fine. हवा पानी सब बांटते. I just received a call from two dealers which are joining little late. So I'm just waiting for them for 2 minutes, not more than that. पैंट में फोल्ड मार, अच्छो नहीं दिख रही है, देखा लाग कबाई लेना है माटी, टॉवेल उनका की एक्चुअली मशीन रखना चाहिए मॉल में मशीन रखो, सभी मॉल में मशीन रखो. Is my screen visible to all of you? राइट पैंट में पीछे नहीं हुए हो, राइट पैंट में पीछे नहीं हुआ, हाँ ग्रीन शू पे राइट पैंट में पीछे नहीं हुआ. Still, some people are missing मैं करूँ out of 40. अच्छा मुझे नीचे Okay, so let's start with the SOPs. बेसिकली आप जब भी ऑर्डर्स प्लेस करते हो जो किसी फैब्रिकेटर को होने तो ये किसी इटानिया से रिलेटेड फैक्ट्री हो जैसे कि पुणे की है और अपकमिंग फिर भी बिलासपुर वाला प्लांट, दोनों प्लांट इटानिया से काम करते हैं फैब्रिकेशन के लिए. And other than that, we have some fabricators in all of the areas. Like there is a Descon, Adex है या फिर हिंदुस्तान वाले हैं, Alufab है. There are many actually. तो इनसे भी अगर ऑर्डर आपको प्लेस करनी है, then in that particular scenario there are some things required to be clear on that order, and that's why we have kept the mail, kept this little bit like communication, like a training or something we can say. So I'll be sharing this mail once again to you, okay? But before that, I'll be going with some with few points, okay? Whenever you are placing the order, basic points needs to be clear, such as whenever you are preparing the quotation itself, then you are getting a Zoho ID for that particular order. So you need to create a Zoho ID first, then you will be preparing the quotation. This is the basic thing you are doing. While placing the orders, along with this Zoho ID and final quotation, you need to send us the survey also. Okay? Everyone, please unmute yourself. We can have a clear communication over here. ऐसे लग रहा है मैं अकेली बात कर रही हूँ and no one is there. Please unmute all of you. And just introduce yourself to me first.
Hi, Sally. I'm Jagdish from ABS Hyderabad. Hi, Jagdish ji. Good morning. Morning. How are you? I'm good. I'm good. Everyone, please one by one unmute yourself. Yeah, morning everyone. Hello, This is Dr. hi, Aditya Sal. this from side. Moyer Spaces, Bangalore. Okay. Mohit from Hello, KV. ma'am. Aditya Hello. this side from Archaizo, Gurgaon. Yes, we discussed this morning. Yeah. Hey, this is Vinay here from Moyer Spaces. I work along with Rishabh. Okay. I think Vinay sir is having little bit of idea about our SOPs and everything, right? Yeah, I know. Yeah. Okay. So we will start with the order detailings right now. First of all, you will once your order is confirmed, okay. First step is आपका जो जोहो आईडी का है उसका स्टेटस आपको चेंज करना है टू द फैब्रिकेशन ऑनगोइंग. आई नो यू आर अ न्यू डीलर, सो आपको ऑलरेडी आई डोंट नो वेदर यू आर गेटिंग द एक्सेस फॉर द इवन फॉर द विंडो मेकर और जोहो आईडी. इज एवरीवन गॉट देयर एक्सेसेस? एटलीस्ट चैट में यस नो कर दो, यहाँ पे मुझे दिख ही जाएगा. Yeah, we have the accesses. Okay, good. First step is to create the Zoho ID. Then you will be preparing your quotation. Whatever the discussion happened between you and client, based on that, your order is finalized. Suppose, okay. So X order is finalized. After that, you want to put it to fabricator. Okay, any one fabricator. तो इसमें दो केसेस है. एक तो इटर्निया की जो फैक्ट्री है पुणे वाली या बिलासपुर वाली, दो प्लांट्स भी है. ओके, यहाँ से अगर जाना है तो दिस इज अ वन केस. एंड अदर फैब्रिकेटर्स को आप देते हो, लोकल आपके पास जो भी अवेलेबल है तो उनको अगर आप देते हो, ठीक है. इन बोथ सिनारियोस अभी जो कॉमन एसओपीज है, लेट मी टेल यू. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जोहो आईडी का जो स्टेटस है दैट मस्ट बी ऑन अ फैब्रिकेशन ऑनगोइंग. Okay. Is this MS? Is this stage correct to be confirmed order? Yes, this is the correct stage. You can see in the chat, someone have already pasted a message in there. Image is there, and this is the correct image. This is supposed to be a stage while you are putting order for the fabrication. Okay. Hey, just quick question. Sorry to interrupt. This is a recording. Yeah, sure. This is getting recorded, right? No, I haven't started it, but let's start now. Yeah. Okay, I have started. Okay, so this is a very basic stage. This is supposed to be on fabrication ongoing. Okay, this is the first step. Second step, you are getting survey completed on the site. ठीक है, आपको इनिशियली आपके जो सर्विस सपोर्ट्स है वहां पे इटर्निया से, they will help you for the initial survey. अभी सर्वे में जो है, you can see we have this survey checklist. I'll just open it for all of you. This is a survey checklist. This is a blank form you are getting. Okay, and you need to fill it up. As of now, I'll just share one survey sheet which is filled. So this is one customer. He had shared one sheet with us. Okay. So basically you can see customer का name यहाँ पे होता है, साइट की एड्रेस होती है, विंडो का कोड आप जो विंडो मेकर में जनरेट करते हो कोटेशन अकॉर्डिंगली विंडो का कोड होता है, ये लोकेशन होता है. दिस इज द सीरीज वी हैव, मल्टीपल सीरीज वी हैव, सो यू नीड टू मेंशन द सीरीज, विंडो के टाइपोलॉजी, ठीक है. देन योर कलर शेड, अगेन हार्डवेयर का कलर. यहाँ पे जो आपके साइजेस होते हैं ये सर्वे के साइजेस हैं, बेस्ड ऑन दैट यू प्रिपेयर फॉर द फैब्रिकेशन विड्थ एंड हाइट. ओके, ये है, यहाँ पे ग्लास आता है. अब यहाँ पे दिस इज अ फिक्स विंडो, तो हैंडल की टाइपोलॉजी नहीं है, तो लेट्स जंप ऑन अदर विंडो इन विच वी हैव सम डिटेल्स फॉर द. यस, वी हैव अ हैंडल डिटेल, वी हैव अ लॉकिंग पॉइंट डिटेल, देन वी हैव अ डिटेल्स ऑफ हैंडल हाइट, at what height you need your handle to be placed. That handle height is there. Mesh typology, it's a sliding, it's from inside, and this is a SS mesh.
just like this you need to fill the survey. Okay, ये visible है आप सब लोगों को? Yes, please. Yes. Yes, ma'am. तो इस तरीके से हमें सर्वे फिल करना है. यहाँ तक कुछ डाउट है? No. आई थिंक आप जब खुद भरोगे तब भी आपको डाउट्स आ सकते हैं, तो फील फ्री टू कनेक्ट विद आवर टीम. ओके, तो बेसिकली ये सर्वे फिल हो गया, आपको ये पीडीएफ फॉर्मेट में शेयर करने के लिए रखना है. ठीक है, फर्स्ट है आपका जोहो आईडी का स्टेज आपको चेंज करना है टू द फैब्रिकेशन ऑनगोइंग. सेकेंड स्टेज आपको ये सर्वे फिल करना है. थर्ड स्टेप क्या है कि आपका जो कोटेशन है इनिशियली आपने, सपोज हम लोग एक कंसिडर करते हैं कि जैसे ये फिक्स विंडो है, एक विंडो का ही कोटा ऐसे कंसिडर कर लेते हैं हम लोग. दिस इज योर फर्स्ट विंडो. कोटेशन बनाते टाइम आपने इसको सपोज बना दिया 1500 बाई 1800 के हिसाब से. ठीक है, क्योंकि आपको इनिशियली टेंटेटिव साइजेस मिलते हैं. तो फॉर द फैब्रिकेशन पर्पस यू नीड टू कॉपी दैट कोटेशन एंड अपडेट एज पर द सर्वे साइजेस एंड डिटेल्स. जो आपका फाइनल कोटेशन होता है उसके बेस पे केस 1 जो है, जैसे कि आप पुणे फैक्ट्री से बिलासपुर प्लांट से आप करवाना चाहते हो तो आपको पीआई जनरेट करना पड़ता है. इन दैट पर्टिकुलर केस आई विल बी यूजिंग योर फाइनल कोटेशन. फाइनल कोटेशंस मींस आपका और क्लाइंट का जिस बेस पे फाइनलाइजेशन हुआ है वो कोटेशन, that quotation I'll be using for the PI preparation. Okay, and this second quotation that I have asked you to share, this will be used for the fabrication purpose. यहाँ पे आपको सारे डिटेल्स प्रॉपरली फिल करने, जैसे कि यहाँ पे भी आपने डाले हुए हैं ये सारे डिटेल्स, दिस फैब्रिकेशन विड्थ एंड हाइट, ग्लास की थिकनेस, हैंडल डिटेल्स, you need to fill correctly on that particular quotation. Okay, so in the case 1 जो आप पुणे फैक्ट्री से या फिर बिलासपुर प्लांट से करवाना चाह रहे हो, in that particular scenario we will be giving you the PI. ठीक है, perform my invoice, we will be giving you perform my invoice. It's for the billing details. Okay, billing will be there, no, in between the plant and you. So for that particular thing हम लोग एक पीआई बना के आपको दे देते हैं. पीआई के साथ में आपको अगर सर्वे में कुछ एडिशनल कमेंट्स डले गए हैं, कुछ आपसे मिसिंग हुआ है या फिर मुझे क्लैरिफिकेशन के लिए कुछ चाहिए मेरी टीम को, तो we make a comment, we take a approval from you and your customer, and based on that उस पे सर्वे पे अगर कुछ कमेंट्स है तो सर्वे along with the comments there will be a design summary based on which we will be releasing the production document. And third thing is your PI, based on which your billing will be initiated later. Okay, so that PI will be shared to you. Okay. One quick So question, say- ma'am. One quick question. Sayali, Sure. Ma'am, so Go ahead, basically, go ahead. after Question, we get this- the final survey, we have to redo the quotation, right? Yes. Okay, thank you. That's why I said, you need to copy the quotation, because your initial quotation, whatever the final quotation is there, that is used for only for the billing purpose. Okay, window maker and other things have little bit of fluctuation in between, because कभी LME कभी कम ज्यादा हो जाता है. तो आपका जो फाइनल कोटेशन है वो चेंज भी हो सकता है. सपोज आपने लास्ट मंथ में वो कोटेशन फाइनल किया, बट सर्वे आपको अभी आपको मिल रहा है 1-1.5 महीने के बाद में, तो आज अगर सेम कोटेशन आप निकालोगे कुछ भी चेंजेस किए बिना, तो उसमें भी वेरिएशन आ सकता है कॉस्ट में. दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड कि जो फाइनल कोटेशन है उसके ऊपर पीआई बनेगी, एंड जो फाइनल सर्वे के साइजेस है उसके ऊपर हम लोग फैब्रिकेशन करते हैं, बट वी नीड द अनदर कोटेशन फॉर दैट. ओके, one more thing I would like to explain in this particular scenario. Suppose you have prepared a window of 1000 by 1000 fixed window you have prepared, okay, and your quotation is finalized. जब सर्वे हुआ तो you realize कि जो 1000 by 1000 की विंडो थी उसके साइजेस कम या ज्यादा हो गए. ठीक है, तो यहाँ पे हमने 50 mm प्लस माइनस का वेरिएशन रखा है, जिसमें हम लोग कॉस्ट नहीं चेंज करते, एज इट इज कॉस्ट हम लोग लेते हैं. बट सपोज उसका साइज बन गया 900 by 1000, तो वो जो एरिया का रिडक्शन है या फिर 900 by 1050 भी हो गया, तो बढ़ भी सकता है एरिया. इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो हम लोग एक टेंटेटिव हमें जो प्रोराटा बेस पे जो कैलकुलेशन होता है कोटेशन पे,
वो उस तरीके से उसका कॉस्ट कम या ज्यादा करेंगे, बट वेरिएशन जो है इट इज इट्स सपोज टू बी मोर देन 50 mm। 50 mm से ज्यादा कम होना चाहिए, 50 mm से ज्यादा बढ़ना चाहिए। इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो वी विल टेकिंग ऑन अ प्रो राटा बेसिस। या ये 50 प्लस माइनस की लिमिट में अंदर में है तो हम लोग उसका कॉस्ट चेंज नहीं करते, सेम कॉस्ट हम पीआई के लिए कंसिडर करते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड? Yes. ओके, कुछ डाउट नहीं है ना? शैल आई रिपीट माई सेल्फ? No, ma'am, no doubt. ओके, तो एक ये सिनारियो है। अभी सर्वे के पॉइंट्स पे जाते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि आपके पास आर्क विंडोज होती है, कुछ कॉर्नर विंडो भी हो सकती है, या फिर आपको सपोज बे विंडो का कुछ ज्वाइनिंग करना हो, कुछ ऐसे हो सकते हैं डिजाइन जो हम लोग विंडो मेकर में नहीं बना भी पाते। जैसे कि अभी स्लाइड एंड फोल्ड का आप देखोगे तो स्लाइड एंड फोल्ड के ओनली 3 पर्टिकुलर जो टाइपोलॉजीज है वो विंडो मेकर में है। अदर देन अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो हम लोग मैन्युअली उसको बना के अपडेट करते हैं। इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो सर्वे में क्या करना है, ये भी डाउट आपको आ सकता है। ये मतलब आपको बाद में भी ये डाउट आ सकता है, बट जस्ट आई एम गिविंग यू द आइडिया। नॉट नेसेसरी कि वन टाइम आपको समझ में आए। हम लोग वहाँ हम लोग यहीं पे आपके हेल्प करने के लिए, तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम, बट जस्ट गिविंग यू द आइडिया। ठीक है, तो बेसिकली हमारी जो सारी आर्क विंडोज है वो बनती है फोर्टेंसी में। ठीक है, आर्क विंडो के लिए जब भी किसी भी फैक्ट्री में आप भेजो, या तो पुणे वाली फैक्ट्री में भेजो, बिलासपुर वाले फैक्ट्री में भेजो, या फिर किसी अदर फैब्रिकेटर में आप भेजो, आपको एक टेम्पलेट प्रिपेयर करना पड़ता है। और बेस्ड ऑन दैट टेम्पलेट आपका जो आर्क है उसका बेंडिंग, उसका ग्लास का डिटेल वो सारा निकाला जाता है। वो शीट शेयर किया गया है और इज इट समथिंग लाइक दिस सर्वे शीट जैसे? नहीं, शीट पे तो यू कैन मेंशन लाइक दिस कि बाबा आपने ऐसे कुछ ड्राइंग बना दिया, बट यहाँ पे डिटेल्स आपके नहीं आते। यू विल बी मेंशनिंग एज पर टेम्पलेट, और वो टेम्पलेट डायरेक्टली फैक्ट्री में जाता है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली मैनुअल ड्राइंग्स बना के हम लोग को भेजना है सर्वे शीट में। एक्चुअली ड्राइंग्स नहीं, टेम्पलेट इज कंप्लीटली डिफरेंट। दैट कैन बी मेड विद अ लाइक वुडन पैलेट्स इफ यू आर यूजिंग, या फिर कुछ एक शीट रहता है ग्रीनिश कलर का, उससे भी वो टेम्पलेट बन सकता है। तो आपका सर्विस वाला जो, हाँ, It's a physical template, right? yes, correct. तो बेस्ड ऑन दैट फिजिकल टेम्पलेट ओनली आर्चेस आर मेड, बिकॉज आर्क्स जो है उसका एग्जैक्ट डायमेंशन, उसका एग्जैक्ट डायमीटर वगैरह है ना, वो विंडो मेकर से या फिर ऐसे मेजर नहीं किया जा सकता। वो लेंस वर्किंग जो होता है वो फैक्ट्री में मैन्युअली होता है। तो आर्क के लिए टेम्पलेट इज कंपलसरी। ठीक है, तो ये हो गया आर्क का। अथॉरिटी टू कोट इन फोर्टेंसी मैम, डीलर को विंडो मेकर में फोर्टेंसी ऑप्शन मिलता है मैम? Potency is allowed only for arcs. विंडो मेकर में लाइव है पोर्टेंसी में आर्क के लिए, बिकॉज ETPCS का है ना, ड्यूरेनियम का मटेरियल, इज नॉट इजी टू बेंड। पोर्टेंसी थोड़ा सा मतलब T5 ग्रेड का एल्यूमिनियम में तो इजीली बेंड हो जाता है। तो बेंडिंग की प्रॉपर्टीज को कंसिडर करते हुए पोर्टेंसी इट्स स्टिल ऑन, बट ओनली फॉर द आर्क्स। गॉट इट मैम, गॉट इट। ठीक है, हाँ, ये फर्स्ट सिनेरियो था। सेकंड सिनेरियो, आपके कुछ कॉर्नर विंडोज होते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होगा, आपका विंडो कुछ जस्ट मेक अ ड्राइंग ओवर हियर, कुछ इस शेप में आपके ड्राइंग्स होंगे। मतलब यहाँ पे शायद आपने स्लाइडर लगा दिया, ये कुछ आपका फिक्स लग रहा होगा, फिर यहाँ पे कुछ और विंडो होगा। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली ये करेक्ट डायमेंशन अगर ना मिले यहाँ पे, तो विंडोज कंप्लीटली मिसअलाइन हो जाती है, कुछ शॉर्ट हो जाता है, कुछ एक्स्ट्रा हो जाता है, तो साइड पे मैनेज करना इज डिफिकल्ट। या फिर यहाँ पे ग्लास टू ग्लास जॉइंट पे बन सकता है। हम फिक्स विंडो में या फिर स्लाइडर में हम लोग ग्लास टू ग्लास जॉइंट्स देते हैं। ETP-SD का अगर हम कंसीडर करें तो वी हैव अ कॉर्नर ओपनिंग स्लाइडर विंडोज। ठीक है, वो भी हमारे पास है। तो दिस पर्टिकुलर सिनेरियो हमें क्या क्या लगेगा, आपका सिल विड्थ कंपलसरी लगेगा। ठीक है, दूसरा चीज, आप उस सिल पे पर्टिकुलर किस लोकेशन पे आप उस विंडो को प्लेस करना चाहते हो। लाइक आउटसाइड से फ्लश करना चाहते हो, सेंटर में प्लेस करना चाहते हो, या फिर इनसाइड से फ्लश करना चाहते हो, जो भी है डिटेल्स क्लियर होने चाहिए।
ओके और थर्ड थिंग, इम्पोर्टेंट थिंग, आपने डायमेंशन कहाँ से लिया? प्रदीप, डू यू हैव एनी कॉर्नर विंडो का लेटेस्ट ड्राइंग? एक मिनट में शेयर करता हूँ। हाँ, अभी पेप्स का एक वंदना का ऑर्डर हमने रिलीज किया था ना, उसमें भी होगा ना डिटेल्स? एक मिनट, आई हैव, एक स्टैंडर्ड ड्राइंग है वो शेयर करता हूँ ताकि वो ठीक है, ओके गुड। चलो, एज ऑफ नाउ आई विल शेयर दिस वन। तो आपको स्क्रीन शेयर है मेरी? इज इट स्टिल विजिबल? या Okay. So basically, I'm just giving you one layout over there. What we do in that particular scenario, okay? तो कस्टमर ने हम डीलर से हमें ये डिटेल रिसीव हुआ था। उन्होंने क्या किया था? दिस इज योर सिल विड्थ, ओके? ये इन्होंने आउटसाइड से भी डायमेंशन दे दिए, इनसाइड से भी डायमेंशन दे दिए। यहाँ पे जो हाइट है वो उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया था, कलर शेड उन्होंने मेंशन किया है, एंड उन्होंने विंडो का प्लेसमेंट का लोकेशन दिया है, विंडो टू बी प्लेस्ड 50 mm इनसाइड फ्रॉम आउटर। मतलब ये आउटर जो लाइन है यहाँ से 50 mm इनसाइड इनका विंडो प्लेस हो रहा है, ठीक है? तो देयर वर 6 विंडोज इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो। अभी ये डिटेल मुझे रिसीव हो गया, ठीक है? आई नो द सिल विड्थ, आई नो डायमेंशन कहाँ से लिया हुआ है, आई नो विंडो कहाँ पे प्लेस हो रहा है। Accordingly, we do prepare a layout on the AutoCAD. जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, इस तरीके से हम लोग लेआउट बना देते हैं, ठीक है? Is it visible? Yes. ओके तो जैसे उन्होंने मेंशन किया था, ये आउटसाइड का सिल का डायमेंशन है 50 mm इनसाइड वी हैव प्लेस्ड द विंडो। यहाँ से ऐसे विंडो लगेगी, दिस विल बी अ ग्लास टू ग्लास जॉइंट। दे हैव प्रेफर्ड द ग्लास टू ग्लास जॉइंट। यहाँ पे बॉक्स ट्यूब भी आ सकता है इनकेस आपका सिस्टम डिफरेंट हो, जैसे कि यहाँ पे स्लाइडर है, यहाँ पे फिक्स है, तो उसको ज्वाइन करने के लिए वी विल बी यूजिंग अ बॉक्स ट्यूब सपोर्ट ओवर हियर, ठीक है, कॉर्नर में। तो ये ग्लास टू ग्लास जॉइंट का सिनेरियो था। अभी यहाँ पे सारे पॉइंट्स मुझे क्लियर है कि डायमेंशन कहाँ से लिया हुआ है, मेरा विंडो का प्लेसमेंट कहाँ पे होने वाला है, मेरा विंडो का सिल विड्थ क्या है, ठीक है? बेस्ड ऑन दिस आई विल बी प्रिपेयरिंग अ ड्राइंग, आई विल बी सेंडिंग दिस लेआउट along with the PI to you. If it is going for the other fabricator, I'll just put a layout for the approval, okay? And based on this approval, we will be preparing the manual fabrication details for that, like cutting detail है, glass की detail है, जो भी है। तो इसके लिए ये necessity है, ठीक है? तो आपको अभी समझ में आया कि कॉर्नर विंडो के लिए अगर आपको देना है तो क्या क्या डिटेल देने हैं? आपको देना है आपने डायमेंशन कहाँ से लिया है। अभी इन्होंने तो दोनों साइड से डायमेंशन लिए थे, आप वन साइड से भी ले सकते हो, बट यू नीड टू मेंशन दैट कि आपने कहाँ से डायमेंशन लिया हुआ है। सेकंड थिंग, प्लेसमेंट कहाँ पे होने वाली है एंड सिल विड्थ कहाँ पे। अकॉर्डिंगली वी विल प्रिपेयर दिस ड्राइंग, दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी टू गिव, ओके? तो अकॉर्डिंगली सर्वे शुड बी फिल्ड। यहाँ पे सर्वे में आप देखोगे, दिस इज अ ब्लैंक शीट, यहाँ पे आप ड्राइंग बना सकते हो, यहाँ पे एडिशनल कमेंट्स डाल सकते हो। यू कैन यूज दिस स्पेस एज ऑफ लाइक wherever and whenever you want, okay? जैसे कि यहाँ पे सिल हाइट का कंफर्मेशन दिया गया है, जो भी है आप वहाँ पे फिल कर सकते हो, बट एवरीथिंग मस्ट बी ऑन सर्वे। अभी 2-3 केस में ये भी हुआ था कि सर्वे वाज फिल्ड परफेक्टली, वी प्रोग्रेस्ड ऑन अ सर्वे, बट वी मिस द पॉइंट कि उन्होंने बहुत बाद के मेल में उन्होंने मेंशन किया था कि उनको सेंट गोबेन मेक का ग्लास चाहिए। तो सर्वे में अगर नहीं होता है, ठीक है, इनिशियल जो मेकर है उसने ही अगर सर्वे में वो मिस कर दिया तो चेकर पॉइंट पे भी वो चेक नहीं होता। इसलिए आई वांट टू कि एवरी मस्ट बी ऑन अ सर्वे शीट। सर्वे इज योर बाइबल, इसको लेके ही हम लोग प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट रिलीज करेंगे। इवन ये भी हो सकता है क्या? This survey has to be hand filled.
Yes. Oh, okay. Because survey sheet is maintained on site only. So it's like a surveyor is taking a dimension and putting everything on right away on that particular sheet, and you are just scanning that sheet and sending it to us. So what if we don't mention the glass make like Saint Gobain? I mean, if I don't mention it, what is default? Whatever is available in the production, will it get they'll add that or? See, basically we are going with the Saint Gobain and Asahi or similar equivalent make. Branded glasses ही हम लोग use करते हैं, but we are not branding for the glass right. Okay, we Right. don't have any tie-up for like particular Saint Gobain or Asahi make. We won't be saying कि हमने यही glass दिया है, but something equivalent will be coming. Okay. Because So when we if you speak want to to, the customer also, because just want to make sure that because we do tell that हम Yes. लोग Saint Gobain का glass use करते हैं, then that's the problem. So that's why I नहीं, wanted to नहीं. check like नहीं Yes, लिखे that तो is why I have cleared. Particularly this point, I have raised. Actually, there are multiple things that to be cleared. Okay, but I particularly raised this particular point because as a like window system, we are not promoting any glass over here. Frankly speaking. But we are giving some equivalent make. Asahi होगा, Saint Gobain होगा. कोई और अगर फ्रॉस्टिंग के केस में उनको उनका प्रोसेसर अगर नहीं चल रहा है तो कोई लोकल भी ग्लास उसमें हो सकता है, बट वी मेक श्योर कि उसके जो स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड है, लाइक फ्रॉस्टिंग है तो फ्रॉस्टिंग है, स्पेशल मेक के ग्लास है जैसे कि ST135 होगा, ST167 होगा, ये तो सेंट गोबेन का ही आएगा. ठीक है, तो पर्टिकुलरली ऐसे अगर ग्लास मेंशन है तो डेफिनेटली वही परचेस करने पड़ेंगे. बट इन केस ऑफ फ्रॉस्टेड थिंग्स, ग्लास के लूवर्स होते हैं, जो लूवर्स, हाँ, ये लूवर्स का भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो डिस्कशन में आना चाहिए. बेसिकली क्या होता है, जब फ्रॉस्टेड की ग्लास होती है, मेनी टाइम्स ग्लास बहुत छोटा हो जाता है तो बड़े बड़े प्रोसेसेस में वर्क नहीं कर पाता. ब्रांडेड ग्लास के केस में वर्किंग नहीं कर पाता तो वो लोकली भी अरेंज किया जाता है. तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में वी कांट से कि वो सेंट गोबेन का ही है या फिर असाही का ही. ठीक है, इसलिए वी आर नॉट प्रमोटिंग एनी ग्लास, बट सम इक्विवेलेंट विल बी कमिंग. एनी डाउट्स इन दिस? Any doubts in this? No. Okay. One more thing. We have gone through the louver particularly. Okay. So whenever you are making the louvers, particularly in ETP-CS system, Eternia Premium Casement, in that particular scenario, if you are choosing for the aluminum louvers, you will be getting complete louvers fixed on that particular window. But in case you are going with the glass louvers, okay, so glass louvers we are not providing because वो transportation में definitely टूटेगा. हम लोग उसका साइड का जो मैकेनिज्म होता है जिसमें ब्लेड हम लोग फिक्स करते हैं वो लगा के देते हैं. बट आपको लूवर का ग्लास जो होता है, ग्लास के एक्चुअली जो ब्लेड होते हैं छोटे छोटे, वी आर नॉट प्रोवाइडिंग दैट फ्रॉम द इटर्नियस का फैक्ट्री, जो भी बिलासपुर होगा, पुणे का होगा. अदर फैब्रिकेटर्स देते कि नहीं वो उनसे डायरेक्टली पूछना पड़ेगा. बट विंडो मेकर का जो आपका कोटेशन बनता है उसमें भी वो रेट इंक्लूड नहीं किया गया है बिकॉज वो हम देते नहीं है. ट्रांसपोर्टेशन में 100% वो टूट जाता है. इट्स बेटर कि आप वो साइड पे ही लगा लो. बट इन केस ऑफ ETECS सिस्टम, ठीक है, जो इटर्निया का इसेंशियल केसमेंट सिस्टम है, उस केस में we are not providing any blades over there. So even if you are making the quotation in the window maker with the louvers, glass louvers, aluminum louvers, any, हमारे पास वो सिस्टम ही नहीं है जिसमें हम लोग वो louvers बैठाते हैं. तो वो वोल एंड सोल आपको साइड पे खुद ही अरेंज करके लोकली लगाना पड़ेगा. इसमें कोई डाउट है? No, we are good. Okay. Now coming to the mesh का जो सिलेक्शन आपका है, ठीक है. स्लाइडिंग विंडोज में आपके जो मेश आते हैं उसमें भी टाइपोलॉजी जो है, एक तो स्लाइडिंग के साथ में स्लाइडिंग का मेश भी आता है जैसे इन्होंने ये इसमें सिलेक्शन किया हुआ है. एंड सेकेंड थिंग इज इंटीग्रेटेड प्लीटेड मेश दैट वी आर गिविंग. तो whenever you are choosing integrated pleated mesh, make sure कि आप उसमें ऑफसेट हैंडल वगैरह सिलेक्ट नहीं कर रहे हो.
क्योंकि फिर आपका मेश नहीं बैठ पाएगा, वहां पे आपको फ्लश हैंडल ही यूज करना पड़ेगा। और प्लीटेड मेश का जो कोटेशन है वो अभी तो हम लोग मैन्युअली दे रहे हैं, तो विंडो मेकर में व्हेन यू आर चूजिंग द हैंडल्स वो विंडो मेकर में सिलेक्ट हो जाएगा। बट आपने अगर सर्वे भर के दे दिया और बोला कि इसमें मुझे प्लीटेड मेश चाहिए डी हैंडल एंड ऑफसेट हैंडल एंड मेट्रो हैंडल के साथ में, तो इट्स नॉट पॉसिबल टू गिव। तो मेक श्योर इफ यू आर गोइंग विद द प्लीटेड इंटीग्रेटेड प्लीटेड मेश, in that particular scenario go with the flush handle only. We have premium flush handle, we have basic flush manual. Okay, इसमें कुछ डाउट है? ओके मैम एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिएगा इंटीग्रेटेड Okay. प्लेटेड मैश वाले को। मैं बताती हूँ। कंसिडर करो ये आपका ग्लास का पैनल है, 2 ग्लास के पैनल से आपके, ठीक है। स्लाइडिंग का जो मेश लगता है वो यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे डी हैंडल लगा सकते हो, यहाँ पे भी डी हैंडल, ऑफसेट हैंडल, मेट्रो हैंडल जो भी है यहाँ पे लगा सकते हो। बट जो आपका प्लीटेड मेश है, अभी मैं कलर चेंज कर रही हूँ, प्लीटेड मेश जो है वो यहाँ पे लगता है इस तरीके से, ठीक है। तो इफ यू आर चूजिंग डी हैंडल, मेट्रो हैंडल, ऑफसेट हैंडल ओवर हियर, यहाँ पे आपको मेश बैठ ही नहीं पाएगा। तो यू नीड टू गो विद द फ्लश, जो भी है बेसिक फ्लश है, प्रीमियम फ्लश है, उस सीरीज के साथ में आपको जाना पड़ेगा। अंडरस्टूड? यस मैम। Yeah, and so Ali, one more thing. ये हाँ? जो इंटीग्रेटेड मैश है वो दोनों साइड लगता है कि एक ही साइड लगेगा? लगा सकते हैं दोनों साइड में, कोई बात नहीं। दोनों साइड भी लगा सकते हैं। Yes, yes, we can make it. The only thing is we need to take care of the handle selection in that particular scenario. Yeah, okay. So but if एक जगह लगाना है तो we have to specify, right? कि एक ही जगह लगाना है। नहीं, वो दोनों लोकेशन पे भी लगा सकते हो, but you need to confirm that. Okay, so accordingly we will be providing the quotation. Pleated mesh का, slide and fold के कुछ सीरीज का, स्लिम सीरीज का, ये पूरे जो quotations है वो मैन्युअली बनते हैं आज की डेट में। ये विंडो मेकर से नहीं बनता। तो इफ यू वांट टू ऐड समथिंग यू नीड टू पुट अस अ मेल अलोंग विद द जोहो आईडी, ठीक है। कोई भी कोटेशन के लिए आप रिक्वेस्ट डालते हो, जोहो आईडी इज कंपलसरी। जोहो आईडी, क्लाइंट का डिटेल, वो कंपलसरी होना चाहिए, तभी हम कोटेशन बना पाते हैं। बेसिक डिटेल्स होने चाहिए उसमें। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया लूअर का, मैश का हो गया, आर्क विंडो का हो गया, कॉर्नर विंडो का हो गया। तो दिस इज द बेसिक पॉइंट्स वी हैव कंक्लूडेड ओवर एज ऑफ नाउ. So I'll just share my that SOP mail along with you. One by one I'll go.